Hello everyone, Namaskar. Welcome to Super Grades CAT by Top Rankers. So today we will be solving certain previous year questions based on your examination CMAT. The questions which have appeared in the earlier exams earlier years so that you get the clear picture कि whatever we have practiced till date is how to apply that and is that useful or not. So let us begin with the questions. The first question, as we have discussed the first section, that was assumption and assertion and reasoning, or I can say statement and assumption types, statement and conclusion types. So on the basis of similar concept, that is critical reasoning, उसका एक question है यहाँ पे. So go through the question. What is given here? A statement is followed by assumption 1 and 2. So there are two assumptions, 1 and 2. An assumption is supposed to be taken for granted. Consider the statement and the assumptions and decide which of the following assumption is implicit in the statement. Means which of the following assumption is reasonable enough to think of before taking this statement. Assumption, what is assumption? Before doing any action, we take certain assumptions. So it is a reasoning behind the given statement. So can these statements be the reason behind the given statement? That is what we have to think. Got it or not? So assumption is you have to think past of the given situation कि इसके पहले क्या सोचा होगा, है ना, ऐसा सोच के ये स्टेप लिया गया होगा. तो whether these given statement justify the given situation, it means this was a proper assumption. और proper assumption को क्या बोलते हैं? The assumption is implicit in the given situation. Let's come to the statement. What is given? The government has decided to relocate all the brick kilns away from the city. The government has decided to relocate brick kilns. पता है ईंट के भट्टे जो है वो शहर से उठा के बाहर हम करवा देंगे, सारे भट्टे बाहर रिलोकेट करवा देंगे. बाहर ईंट की जो भी फैक्ट्री होती, जो भी प्रोडक्शन होता है, वो शहर के बाहर करना चाहती गवर्नमेंट. अब ये तो इन्होंने एक्शन ले लिया, या ये सिचुएशन है, तो ये ऐसी सिचुएशन अराइज क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण था, वो कारण सोचना है. एंड दैट कारण इज नोन एज assumption. Got it or not? Let's go through the first assumption. Pollution in the city is being caused only because of the brick kilns in the city. अगर ये only word use नहीं किया होता, in the city, is brick kilns the only reason of the pollution? No, it might be one of the reasons. So ओनली वर्ड यूज कर लिया, इट इज देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड assumption. गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ इसी की वजह से पूरा पोल्यूशन हो रहा है तो इसको शहर से बाहर फेंक दो. नहीं नहीं, ये भी एक रीजन है, इसकी वजह से थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये भी एक रीजन है, इसलिए इसको तो एटलीस्ट बाहर हम कर सकते हैं. अगर इस लाइंस पर सोचते हैं तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया कि इसी की वजह से हो रहा है. नहीं, ऐसा तो नहीं है. सो दिस इज नॉट अ वैलिड assumption, और वी कैन से इट इज वेरी वीक assumption, जो कि रेलेवेंट ही नहीं है सिचुएशन से. नेक्स्ट, वर्कर्स शैल बी एबल टू ट्रैवल डेली टू द न्यू साइट ऑफ द ब्रिक किल्स. अब ऑब्वियसली ये जो फैक्ट्री है ये ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव, वर्कर इंटेंसिव फैक्ट्री है या वर्कर इंटेंसिव काम है. तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि वर्कर शैल बी एबल टू ट्रैवल डेली टू द ब्रिक किल. मतलब उन्होंने कंसल्ट किया होगा, वर्कर बोले हम नहीं आएंगे उतनी दूर, तुम्हें चलाना है वैसे चला लो, रोबोट लाके चला लो. तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू टेक सच डिसीजन. अगर ये डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने तो ऑब्वियसली एक स्टेक होल्डर जो कि अपने वर्कर्स हैं उनसे भी पूछा गया होगा, उनसे भी कंसल्ट किया गया होगा, उनका भी कन्वीनियंस देखा गया होगा कि भाई ये लोग वहां तक जा सकते हैं या नहीं. एंड यहाँ पे शैल बी दिया हुआ है, मतलब पॉसिबिलिटी है, कुछ लोग वहीं जाके रिलोकेट कर लेंगे कि यार रोज रोज क्या आना जाना. वर्कर्स जनरली उसी के आसपास दे क्रिएट देयर टेम्पररी कच्चा हाउसेस एंड ऑल, एंड दे reside thereby only until and unless the project is on. तो what happens कि यहाँ पे शैल वर्ड यूज किया, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके परमानेंट रेसिडेंस आसपास होंगे एंड दे विल बी एबल टू कम्यूट टू गो टू इट. तो दिस इज अ वैलिड assumption. यहाँ पे क्योंकि शैल वर्ड यूज किया, तो ऐसा हो सकता है कि सारे लोकेट कर पाएंगे. तो सारे के सारे ट्रैवल कर पाएंगे इंक्लूड्स कि कुछ तो करेंगे और कुछ रिलोकेट हो जाएंगे. तो स्टिल it remains a valid assumption. That is why we will go with कि only assumption 2 is implicit, only assumption 2 makes sense, because of which the situation has been, or the decision has been taken, or the situation has arisen. Got it or not? Clear है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So this is first very topic that we have done. Let's move to the next one. What they have given. Each of the five balls, such as red, blue, yellow, black, and green, is of different weight. It is known that
ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया हेवियर, लाइटर, हेवियर, लाइटेस्ट। इन वर्ड से मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन किसका है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, पजल बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन रैंकिंग बेस्ड है या पजल बेस्ड है तो मैं क्या करूंगा, रैंक लिख लूंगा। 1 2, कितने बॉल्स हैं, 5, 3 4 5। और यहाँ पे मैं इनको फिल करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे कौन सी बॉल आएगी। ब्लैक बॉल इज हेवियर देन रेड एंड ब्लू बॉल। तो ब्लैक बॉल या तो यहाँ हो सकती है और इसके नीचे हमारी रेड और ब्लू बॉल होगी। तो रेड और ब्लू एटलीस्ट दो प्लेसेस तो देंगी, दो तरीके की बॉल्स हैं। तो लास्ट की दो प्लेसेस पे तो ब्लैक नहीं हो सकता। तो ब्लैक या तो थर्ड पे हो सकता है या सेकंड पे या फर्स्ट पे, पर ब्लैक यहाँ पे नहीं हो सकता। काट दो, यहाँ भी ब्लैक लिख के कैंसिल कर दो कि ब्लैक यहाँ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, येलो बॉल इज लाइटर देन द रेड बॉल। अब इस पे डिपेंड करेगा हम रैंक कौन सी ले रहे हैं। तो ये अपन किसको ले रहे हैं, हेवीएस्ट को, ये लिख लिया करो। और ये किसको ले रहे हैं, फिफ्थ रैंक किसको दे रहे हैं, लाइटेस्ट को। तो उन्होंने क्या दिया हुआ, येलो बॉल इज लाइटर देन द रेड बॉल। रेड बॉल से नीचे येलो बॉल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लैक यहां भी नहीं हो सकता। अब या तो यहां होगा या यहां होगा ब्लैक। नेक्स्ट, ब्लू बॉल इज हेवियर देन द रेड बॉल एंड द ग्रीन बॉल। ब्लू बॉल जो है वो हेवियर है रेड और ग्रीन से, तो रेड के ऊपर आएगी, रेड के ऊपर आएगी आपकी ब्लू बॉल, और ब्लू के ऊपर आएगी आपकी ब्लैक बॉल। और क्या दिया हुआ है, ब्लू बॉल इज हेवियर देन द रेड बॉल एंड द ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल जो है वो नीचे ही आएगी, बट ग्रीन बॉल की हम रैंक नहीं बता सकते। वो येलो के नीचे भी आ सकती है, वो रेड के नीचे भी आ सकती है, और वो रेड से ऊपर भी आ सकती है। तो अब हम बस ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 बॉल्स तो यहाँ पर है। तो सबसे टॉप पे कौन सी बॉल आएगी, ब्लैक। बट बाकी बॉल्स का मुझे नहीं पता। नेक्स्ट बॉल डेफिनेटली ब्लू। अब ब्लू के बाद रेड ग्रीन और येलो होंगे, रेड ग्रीन और येलो होंगे, क्योंकि येलो जो है वो लाइटर देन दी रेड बॉल है, रेड बॉल से नीचे है येलो बॉल। तो येलो या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, अगर यहाँ रेड आ गया, अगर यहाँ ग्रीन आया। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मतलब मैं लिख सकता हूँ ग्रीन, रेड एंड येलो, और आई कैन राइट रेड, ग्रीन एंड येलो, और आई कैन राइट रेड, येलो और ग्रीन। क्योंकि ग्रीन की पोजीशन नहीं पता हमें, लास्ट होगी या, पर इन सब में सारे स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। ब्लैक बॉल इज हेवियर देन रेड एंड ब्लू, रेड और ब्लू दोनों से हेवियर है, ठीक है। येलो बॉल इज लाइटर देन द रेड बॉल, रेड बॉल के नीचे हमें है हमेशा येलो बॉल, ठीक है। ब्लू बॉल इज हेवियर देन द रेड एंड द ग्रीन बॉल, ब्लू बॉल इज हेवियर देन द रेड एंड द ग्रीन बॉल, तो वो भी है। और ऑलरेडी येलो रेड के नीचे है तो ब्लू के नीचे होगा, तो इन दोनों की रैंक फिक्स हो रही है। बाकी तीन लोगों की रैंक फिक्स नहीं हो रही है। तो विच कुड बी द लाइटेस्ट वन, सबसे लाइटेस्ट, लाइटेस्ट मतलब फिफ्थ रैंक पे। इस कंडीशन में कौन आ रहा है, येलो। इस कंडीशन में कौन आ रहा है बेटा, येलो। और इस कंडीशन में कौन आ रहा है लाइटेस्ट पोजीशन पे, ग्रीन। सो या तो ग्रीन होगी या येलो होगी। सो द आंसर इज ईदर येलो और ग्रीन। वेरी इजी। So this is how you can solve this ranking puzzle and answer it. Try to make each and every case so that you have a clarity कि when it comes to either or या कुछ भी तो कैसे solve करना। क्लियर है, समझ में आई बात, आगे बढ़े। In a college 200 students are randomly chosen, 140 like tea and 120 like coffee। तो ये obviously Venn diagram से बहुत आसानी से हो जाएगा। This is tea, this is coffee, this is 140, this is 120 एंड 70 लाइक बोथ टी एंड कॉफी। इसकी वैल्यू 70। अगर ये 70 तो ये भी 70, अगर ये 70 तो ये 50। तो एक बाहर सेट बनेगा विच इज कॉल्ड नन। और इन सबका सम कितना होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं कॉलेज में, 200। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 70 मतलब फर्स्ट वाला प्लस 70 प्लस 50 प्लस नन शुड बी इक्वल टू 200। या तो लोग सिर्फ टी पिएंगे, या तो लोग सिर्फ कॉफी पिएंगे, या दोनों पिएंगे, या कुछ भी नहीं पिएंगे, यही चार रीजन जनरेट होंगे। तो इन सबका सम कितना होना चाहिए, 200 के बराबर। तो इसको अपन जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, दिस विल अमाउंट टू 190।
plus n is equal to 200 and n is equal to 10. So from where here we can very easily say how many like neither tea nor coffee? How many like neither tea nor coffee? That is none, which is 10. Answer is D Delhi, and hence we can proceed. अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है पॉज करो रिवर्स करो देखो कैसे हमने वेन डायग्राम बनाया कैसे डिसाइड कर पाए वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम दिस इज अ सीरीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स अल्फाबेटिकल सीरीज अगर है तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक होता है कि भाई नंबर्स का गेम तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे हमारे वॉवल्स आ रहे हैं तो दोनों चीजें आ रही तो कॉन्सोनेंट वॉल जो बेसिक सिचुएशन है वो तो नहीं है यहाँ पे तो अपन नंबर गेम देखते हैं दिस इज D I T GMQKQM एंड PUH अब D मतलब 4 I मतलब 9 T मतलब 20 G मतलब 7 M मतलब 13 और Q मतलब 17 K मतलब 11 Q मतलब 17 M मतलब 13 मैं इनकी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज लिख रहा हूँ अल्फाबेट में कौन से नंबर पे आते हैं P मतलब 16 U मतलब 22 STU it is 21 and H मतलब 8 from here you can draw conclusion that I am adding 3 here I am adding 4 so here I am adding 5 तो अब क्या ऐड करना पड़ेगा 6 अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो 16 प्लस 6 इज 22 एंड 22 का मतलब क्या होता है V तो 22 करिस्पॉन्ड्स टू V यहाँ पे इस सीरीज को देखो 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17 प्लस 4 तो यहाँ पे भी प्लस 4 तो ये क्या आ जाएगा 25 एंड 25 करिस्पॉन्ड्स टू Y यहाँ पे 17 से 13 हुआ तो -4 13 से 8 हुआ तो -5 20 से 17 हुआ तो -3 तो -3 -4 -5 तो अब क्या होगा -6 तो बचेगा क्या सिर्फ 2 एंड 2 करिस्पॉन्ड्स टू B सो द आंसर इज V by Y B दैट इज A ऑप्शन वेरी सिंपल तो जब भी इस तरीके की सीरीज हो सबसे पहले तो कॉन्सोनेंट और वावल के बारे में सोचना है कॉन्सोनेंट और वावल तो हमें सामने ही दिख रहे हैं तो मतलब ऐसे कोई परहेज नहीं है उनको कॉन्सोनेंट और वावल से ना कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और वावल वावल की सीरीज चल रही है क्योंकि बीच में एम और क्यू आ गया अगर I O U टाइप्स कुछ होता तो सोचते तो नेक्स्ट चीज क्या क्लिक होती है कि भाई नंबर रीजनिंग तो नहीं है तो उनको पहले नंबर में कन्वर्ट किया रिस्पेक्टिव और फिर आगे बढ़े क्लियर है आगे बढ़े राम ट्रैवल towards east from his office. This is his office. He traveled towards east. This is east. After traveling 10 kilometers, after traveling for 10 kilometers, he took a right turn. Right turn मतलब clockwise direction. ऐसे turn लेगा clockwise. And covered 2 kilometers. तो 10 किलोमीटर ये है ये अपना 2 किलोमीटर हो गया वो रिलेटिवली लगना भी तो चाहिए कि भाई 10 और 2 है took a right turn and covered 2 kilometers. Then he took a 45-degree turn in the clockwise direction. तो clockwise ऐसे चल रहा है ना अपना तो ये 45 डिग्री अगर 90 डिग्री लेता तो इधर आ जाता 45 मतलब इधर बीच में एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर्स कितना चला सिर्फ 3 किलोमीटर ठीक है इन विच डायरेक्शन इज ही ट्रैवलिंग नाउ तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा ये कौन सी है वेस्ट ये कौन सी है साउथ तो ये कौन सी हो गई साउथ वेस्ट हेंस द आंसर इज सी southwest. In which direction is he traveling now? In the southwest direction. Very simple question. Let's move to the next part. At 3 o'clock, if the hour hand points towards west, 3 o'clock में situation क्या होती clock में? ये 12 और ये 3 ये 12 अगर ये west है तो ये क्या हो गया होगा east अगर west और east ये क्या हो गया होगा east अगर वेस्ट और ईस्ट इंटरचेंज हो गए तो नॉर्थ और साउथ भी इंटरचेंज हो जाएंगे ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ तभी तो चलेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्लियर है पूरा चेंज हो गया
चलो अब देखते क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। एट 3 o'clock इफ द आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट, आवर हैंड यही है अपना आवर हैंड, ये अपना वेस्ट देख रहा है। इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 7:45, 7:45 पे मिनट हैंड किधर पॉइंट करेगा, 45 मिनट पे किधर पॉइंट करता है, 9 पे। और 9 पे अगर पॉइंट करेगा तो 9 कौन सी डायरेक्शन है, वो हम पहले ही डिकोड कर चुके थे कि अगर ये वेस्ट है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट। सो द आंसर इज ईस्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। आगे बढ़े। अगेन क्रिटिकल रीजनिंग पे एक और क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion is given as money can resolve most of our problems. Can resolve most of our problems. So is that true? They are not saying it can resolve all of your problems. अगर all बोल देते तो अपन बोल देते false है. But most. Yes, that is true. Makes sense in certain situations. Next. We are living in a hierarchical society. Is that the correct reason? Because of hierarchy, money can solve all the problems? Is that the reason? No. But is that true? Yeah, we are living in a hierarchical society कि ये है इसके नीचे ये है, तो वो तो हम फॉलो करते हैं, हायरार्की तो फॉलो करते हैं सोसाइटी लेवल पे भी, प्रोफेशनल पे भी, तो दोनों ट्रू है। बट सेकेंड वाला क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। वो कैसे भी प्रॉब्लम्स और मनी को रिलेट नहीं कर पा रहा। हाउ मनी कैन सॉल्व, रीजन क्या होना चाहिए, मनी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, तो इसका रीजन क्या आना चाहिए, हाउ मनी कैन सॉल्व, वाई मनी कैन सॉल्व, ऐसा कुछ आना चाहिए। यहाँ पे तो मनी के बारे में बात हुई ना प्रॉब्लम के बारे में बात हुई। तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये इसका रीजन नहीं है, मतलब इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट दी correct explanation of our given assertion. We have asserted something, but we are not able to justify it with this statement. As simple as that. So the answer is B, Bombay. Let's move to next question. Complete the series. लिख लेते हैं क्या सीरीज है। एफ ए क्यू, ए क्यू एफ, डैश डैश डैश, एफ ए क्यू, ए क्यू एफ। ए यहाँ, एफ यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, एफ बीच में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तीनों में खेल रहे हैं तो हम नंबर पे बाद में जाएंगे। पहले अल्फाबेट चेंज ही नहीं हो रहा है, एफ ए क्यू को ही लेके तीनों उन्होंने चारों सीरीज बनाई हुई है, चारों जो टर्म्स है वो एफ ए क्यू एफ ए क्यू एफ ए क्यू एफ ए क्यू से बने हुए हैं। तो एफ ए क्यू का ही कुछ इंटरचेंजिंग का प्रॉब्लम है। तो एफ यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बीच में नहीं आया, तो एफ यहाँ बीच में आ गया। क्यू यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इस पोजीशन पे नहीं आया। और ए फर्स्ट पे आ गया, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं इसको सेकंड बोल दूं थर्ड, तो ए थर्ड पे नहीं आया। सो द आंसर इज सिंपली क्यू एफ ए। और इसी तरीके से चल रहा है, ए ए ए, फिर इसके बाद सेकंड पोजीशन, फिर फर्स्ट पोजीशन। ऐसी एफ को देखो, एफ एफ बीच में, फिर एफ एफ फिर से कोने पे। क्लियर है। तो कौन सा वाला नहीं आया था अपना, क्यू एफ ए। सो द आंसर इज बी, बॉम्बे। वेरी सिंपली यू कैन से कि एंड पॉइंट्स मीट कर लिए पर सेंटर नहीं मीट किया था, एफ ने एफ को रख दिया, सिमिलरली क्यू और ए को रख दिया। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। B, C, D, E, G, H are six persons sitting in a row, not necessarily in the same order. Two persons are sitting between C and G. There are six people. One, two, three, four, five, six. Two person are sitting between C and G. तो इस स्टेटमेंट को अपन यूज करेंगे, बट फिलहाल इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आई कैन पुट C and G over here, over here, over here, and in the reverse order. तो अभी नहीं लिखते, पहले देखते कुछ फिक्स हो रहा है कि नहीं। C is placed to the immediate left of B. ये भी अपन लिख के रख लेते हैं कि सी इज प्लेस टू द, मतलब जहां भी आएगा सी और बी साथ में आएंगे और इसी ऑर्डर में आएंगे। सी इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी इज द फर्स्ट वन इन दी रो, तो इसका मतलब अब हम फिक्स कर सकते हैं कि डी कैन कम हेयर। अब सी और बी साथ में आने चाहिए। सी एंड एच आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब सी एच कभी नहीं हो सकता, ना एच सी कभी हो सकता, एडजेसेंट नहीं होंगे। विच वन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर? अब कुछ भी नहीं दिया है तो लेट अस स्टार्ट प्लेसिंग सी एंड डी। सी यहाँ है एंड टू पर्सन आर सिटिंग, छोड़ के जी यहाँ है। एच यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तो वैसे भी फिक्स है बी होगा। अब एच आ सकता है यहाँ पे या ई आ सकता है, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। और ई यहाँ आ सकता है और एच यहाँ आ सकता है। एक अरेंजमेंट ये है, कोई दिक्कत किसी को?
दूसरी पॉसिबिलिटी, डी तो अपना फिक्स है। अब मैं सी को यहाँ रख देता हूँ, सी को ही मूव कराता हूँ और जी को यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ पे बी आएगा। अब एच यहाँ नहीं हो सकता, तो एच यहाँ होगा और यहाँ पे कौन आएगा, ई। नेक्स्ट डी, इसके बियॉन्ड सी जा नहीं सकता, तो अब मैं किसको रख दूं यहाँ पे, जी को। यहाँ पे जी को रखूंगा तो दो छोड़ के यहाँ सी आएगा, यहाँ एच नहीं आ सकता, यहाँ पे तो बी ऑलरेडी है, तो एच स्लैश ई, ई स्लैश एच, ये एक पॉसिबिलिटी है। एच ई और कौन बचा अपने, 1 2 3 4, एक पोजीशन ज्यादा बन गई थी, सॉरी। 1 2 3 4 5 6, दिस इज डी, दिस इज जी, दो छोड़ के सी और यहाँ पे बी। अब मेरे पास एच यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ई और यहाँ पे एच। और क्या पॉसिबिलिटी है, डी, एक गैप छोड़ के फिर जी आ जाए, दो गैप छोड़ के फिर सी आ जाए। अब सी के बगल में बी होना चाहिए, तो यहाँ पे बी रखने की जगह ही नहीं, तो ये वाला तो पॉसिबल है नहीं। तो या तो ये केस हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया, तो हम ये पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करके ही चलेंगे, इनको लेके ही चलेंगे। अब पूछा क्या है उस पर डिपेंड करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट, कौन सा वाला करेक्ट अरेंजमेंट है। डी के बगल में एच आ रहा है क्या, तीनों में नहीं आ रहा, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट। दूसरी चीज, सी और बी साथ में होने चाहिए, तो वो देख के भी हम एलिमिनेट कर सकते थे इसको। नेक्स्ट डी सी, डी सी बी एच जी ई, हाँ ये हो सकता है। फिर डी जी एच ई सी बी, लास्ट वाला ये भी हो सकता है। डी जी ई एच, एच और सी साथ में नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये वाला नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। आंसर इज बी बॉम्बे, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। पर देखो मैंने हर एक केस बनाया, तभी मुझे देखा, फालतू में ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर मैं केसेस बनाता, हो सकता है कुछ मिस हो जाए, कुछ एडिशनल आ जाए, तो गलती हो सकती है। तो वाइल कीपिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन माइंड, यू हैव टू मेक फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जॉस्ट ऑल द केसेस एंड देन चेक। क्लियर है, कोई भी दिक्कत किसी को भी, आगे बढ़े। सो दिस वाज अगेन अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट 144 is related to 77, in the same way 168 is related to। तो हम यहां से इसको रिलेट कर सकते हैं, 77 इंटू टू कितना होता है, 154, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस दिख रहा है। और इसमें से अगर मैं 10 हटा दूं तो कितना बचेगा, 144। तो 144 is related to 77, तो 168 is related to, in the same way as 168 is related to। तो 168 किससे रिलेट होगा, तो 168 यहाँ पे सारे नंबर उसके हाफ दिख रहे हैं, तो उसके ऑलमोस्ट हाफ, जिसके लास्ट डिजिट क्या है, 7 × 2 4, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 8, 8 किसके डबल में आएगी, 89। तो करके देख लेते हैं, अगर यही लॉजिक फुलफिल हो गया, 89 × 2 इज 178, इसमें से -10 करो, सो द आंसर इज 168, हेंस दिस इज करेक्ट आंसर। देख के पता चल रहा है इनको, बल्कि ऐसे देना था 79 69, मतलब PYQ है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज करने के लिए आखिरी में सब में 9 दे दो, तो बच्चा पहले करके देखे सारे के सारे, बट इसी से फिट हो गया, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, क्योंकि वहां पे भी ये लॉजिक लग रहा है, ट्वाइस करके -10 करना है, इंटू टू देन -10। दूसरे वाले में भी यही लॉजिक लग रहा है, इंटू टू -10, सो द आंसर इज 89। क्लियर है। नेक्स्ट, a device classifies number according to the following criteria, the number must have 5 digits। चेक करो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो सब सेटिस्फाई कर गए, पहला क्राइटेरिया सब सेटिस्फाई कर गए, सब में 5 डिजिट्स है। फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर परफेक्ट स्क्वायर, इसमें 1 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं सेकंड को, इसमें 9 और 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसमें 4 और 9 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 9 और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो फर्स्ट भी सेटिस्फाई कर गया, सेकंड भी सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट, द मिडिल नंबर, द मिडिल डिजिट इज एन ऑड नंबर, मिडिल डिजिट ऑड होनी चाहिए, यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, ठीक है, तो सब जगह ऑड है, मतलब थर्ड क्राइटेरिया भी सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सी भी सबने सेटिस्फाई कर दिया। सेकेंड एंड फोर डिजिट्स, अब इसको खत्म नहीं हुआ था, द मिडिल डिजिट इज एन ऑड नंबर, और इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, इट इज एन एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो जो मिडिल डिजिट है वो फर्स्ट और लास्ट का एडिशन होना चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 1, 1 और 4 का एडिशन,
तो ये इसकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। 9 और 4 का एडिशन 13 होता है, जो कि नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 9 और 4 13 होता, नहीं कर रहा। 9 और 4 13 होता, नहीं कर रहा। हेंस द आंसर इज ए, डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बिना ही सॉल्व हो गया, तीन कंडीशंस एक ही नंबर ने सेटिस्फाई की हुई थी, काफी इजी ऑप्शंस थे। हालांकि ऑप्शन अगर अपन ट्रिकी बनाते तो सब में सेटिस्फाई कर जाता, तो फिर अपन लास्ट कंडीशन भी चेक करते। अब लास्ट वाली एक बार बस चेक कर लो कि क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ये नंबर। सेकेंड एंड 4 डिजिट्स आर द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड। फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस, फर्स्ट डिजिट क्या है 1, 1 - 5, डिफरेंस क्या आ रहा है 4, तो सेटिस्फाई कर गया। सेकंड डिजिट तो सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ डिजिट क्या है, थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट, 5 - 4 is 1, वो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। हेंस दिस इज आवर परफेक्ट नंबर, द नंबर दे हैव आस्क्ड, सो दिस इज आवर आंसर। आंसर इज ए। गॉट इट? वेरी सिंपल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the pair which has following types of relationship. सर्कल इज टू circumference, circumference इसका क्या होता है, पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल इज टू पेरीमीटर, सिंपल। सी, वेरी सिंपल। सिलेंडर इज टू वॉल्यूम, बाकी सब अलग है, बस एक ही में पेरीमीटर लिखा हुआ। so that is the answer. Let's move to the next one. Find the odd one among the following: cabbage, potato, onion and lettuce. बहुत ही सिंपल है, आंसर इज पोटैटो। एंड थिंक अबाउट इट, व्हाई, पॉज हियर एंड थिंक कि व्हाई पोटैटो इज द आंसर। बिकॉज cabbage, onion and lettuce can be used as salad, potato cannot be used. बाकी लीफी स्टेम उसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो cabbage can be used as salad, onion, lettuce, all the three can be used as salad, potato cannot be, hence B is the answer. Let's move to next question. 6 students PQRSTU are sitting around a hexagonal table, each at one corner. So this is my hexagonal table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Each at one corner and facing the center of the hexagon. अगर सबके सब सेंटर फेस कर रहे हैं तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। पहले प्लस बाद में माइनस कर लो। प्लस इंडिकेट्स राइट हैंड साइड, प्लस उस बंदे का राइट हैंड है और माइनस उसका लेफ्ट हैंड है। P is second to the left of U. अब क्योंकि सर्कल है कहीं भी रख सकते हैं, तो U को यहां रख लिया, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पे आपका P आ जाएगा। Q इज नेबर ऑफ R एंड S। अगर Q नेबर ऑफ R एंड S है तो Q बीच में बैठे, R S बगल में बैठे, यहाँ पॉसिबल नहीं है। Q यहाँ बैठेगा तो यहाँ R S होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, Q यहाँ बैठे, R अगर यहाँ बैठा तो यहाँ S बैठेगा, और S अगर यहाँ बैठा तो यहाँ R बैठेगा। तो तीसरा बंदा कौन बचा, PQRSTU, T यहाँ बैठ गया, तो T फिक्स हो गया। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब ये लेफ्ट है, माइनस मतलब लेफ्ट है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, तो यहाँ पे किसको बैठना चाहिए, S को। अगर यहाँ S बैठा है तो यहाँ कौन बैठेगा, R। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हु इज टू द राइट ऑफ R। ये R है, इसके राइट में कौन है, ये प्लस है, प्लस मतलब राइट हैंड, तो राइट हैंड में कौन, P। सो द आंसर इज B, बॉम्बे। वेरी सिंपल हेक्सागोनल टेबल अरेंजमेंट, और वी कैन से सर्कुलर अरेंजमेंट ही था, बस हेक्सागोनल टेबल हुई थी। क्लियर है, समझ में आई बात। जब भी सबके सब सेंटर फेस करते हैं, बिना सोचे समझे यू कैन पुट पहले प्लस बाद में माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इन दैट इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर रख दो, तो ऑटोमेटिकली सबके राइट और लेफ्ट जस्टिफाई हो जाते हैं। वही राइट होते, प्लस मतलब राइट साइड एंड माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? Do like, share and subscribe, and do comment about any doubts, any queries in the comment box, so that we can help you. Have a nice day.